Very good morning, dear students. We are going to continue the chapter, the third level, and today we are going to continue from page number 4. So till now we saw that how Charlie, our protagonist, reaches at the third level. For a moment, he thinks that he has come on the second level. उसको लगता है कि वो सेकंड लेवल में पहुंच गया, but actually it was something strange, something new for him. The things were of the old time. There were gas lights, not the electric lights, right? There was pittons and they were made of brass. And people were wearing different kind of clothes. The clothes which were used in the past time, old-fashioned clothes people were wearing, and especially the ticket counters, the booking counters, they were smaller and they were made of wood. So these things, compelled him to think that it was not the place which he used to come every day, which he used to see every day. So from page number 4 we have to start once again, although we studied 3 or 4 lines of this page, but we are going to start from the beginning of the page. So there were brass pittons on the floor. Brass means metal, पीतल का बना हुआ. And across the station a glint of light caught my eye. और वो जब across the station देखते हैं तो एक glint of ray of light उनकी जो imagination को catch करती है. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. एक आदमी जो है वो अपनी vest pocket से, as we discussed in the previous video also, he snapped out a golden watch, right? जो लोग पहले रखते थे अपनी जेब में. तो उसने स्नैप करके झटके से उसका ढक्कन खोला. ग्लैंस एट द वॉच एंड फ्राउन. और उस घड़ी को देखा और फ्राउन किया. फ्राउन का मतलब मैंने आपको बताया था, लुक्ड हार्ड. व्हेन वी फ्राउन, हमारी आंखें यूं कुछ करके हो जाती, राइट? तो उसने फ्राउन करके देखा. ही वोर अ डर्बी हैट. द पर्सन वॉज वियरिंग अ डर्बी हैट. अब ये डर्बी हैट क्या होती है? गोल हैट होती है, जैसे मोस्टली पहले डिटेक्टिव्स पहनते थे, राइट? तो वो डर्बी हैट उसने पहनी हुई थी. अ ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लेपल्स एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैश. हैंडल बार मतलब लंबी लंबी जो नीचे लटकी हुई मूछों को हैंडल बार मुस्टैश कहा जाता है, राइट? हैंडल बार मुस्टैश जो आज बहुत फैशन में है इस समय, तो उस तरह की हैंडल बार मुस्टैश रखी हुई थी उसने. और एक डर्बी हैट पहनी थी. ब्लैक 4 बटन सूट पहना हुआ था. 4 बटन सूट था, उस पर लेपल्स लगे हुए थे, यानी कि स्ट्रैप लगे थे बंद करने के लिए. लेपल्स मीन्स स्ट्रैप और कैप यू कैन से. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. Means the fashion was of the 1890, means 19th century का फैशन किया हुआ था लोगों ने, 19th century का. The people all around, they were wearing the clothes of the 1890. 1890 समथिंग अराउंड हो गया 19th सेंचुरी. तो 19th सेंचुरी के लास्ट में ख़त्म होने वाली जो सेंचुरी थी, उसमें जो कपड़े या फैशन था, उस ज़माने के कपड़े पहने हुए थे सब. I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. अब जब चार्ली जिस टाइम का था, उस समय क्लीन शेव का टाइम चल रहा था. That was the fashion of clean shave. People were not wearing or having the beard and mustache. वो फैशन फिर से रिपीट हुआ है. अब सभी लोग दाढ़ी मूछ रख रहे हैं. तो चार्ली ने देखा कि ये तो लोग बड़े ही डिफरेंट दिखाई दे रहे थे. They were wearing the mustache. They were having the mustache and beards and sideburns also. These are sideburns. इनको sideburns कहते हैं, जिनको हिंदी में हम कलम कहते हैं. They are called, these here are called sideburns. तो बहुत सारी sideburns, भरी भरी sideburns, यानी कि भरे भरे बाल चलते थे पहले.
अब तो ट्रिम हेयर चलते हैं यहाँ से कान के ऊपर से. देयर वॉज अ टाइम व्हेन यू नो ईयर वॉज नॉट शोन. कान नहीं दिखाई देता था फैशन. बालों से कान ढके रहते थे. आपने पुराने हीरोज हीरोइन को भी देखा होगा कि इतने घने बाल हीरोज रखते थे कि उनके कान नहीं दिखाई देते. तो उस ज़माने की जो तरीका था वो उसको दिखाई दिया. I never saw so many beard, sideburn and fancy mustaches in my life. Mustaches means होती है मूछें. Mustaches. So I never saw means कभी देखा ही नहीं था इससे पहले उसने इतना. A woman walked in through the train gate. और एक woman जो थी वो ट्रेन गेट से अंदर जा रही थी. A woman walked in through the train gate. ट्रेन गेट से अंदर जा रही थी. She wore a dress with a leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high button shoes. क्या पहना हुआ था उसने? एक ड्रेस पहनी थी जिसमें लेग ऑफ मटन स्लीव्स, यानी कि जो ड्रेस थी उसके जो पैर थे वो मटन स्लीव्स थे. मटन स्लीव एक तरह का कपड़े को बोलते हैं, राइट. जैसे कि मटन की तरह फूली हुई कपड़े होते हैं, ठीक है. वो फूले हुए कपड़े होते हैं, मतलब कि उसमें कपड़ा ज़्यादा होता है. तो उसकी जो स्लीव्स थी वो कैसी थी? वो मटन स्लीव्स थी, यानी कि मोटी मोटी, राइट, जिसको हम बैगी कहते हैं. तो बैगी कपड़े उसने पहने हुए थे, मटन स्लीव्स. एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़. और एक स्कर्ट पहनी थी जो कि हाई बटन शूज़ तक जा रही थी नीचे तक. और शूज़ जो थे वो बटन वाले और हाई शूज़ थे. जैक बूट्स पहने हुए थे उसने, लेडी ने. सो दैट काइंड ऑफ अपीयरेंस शी हैड, राइट. मटन स्लीव्स वाली उसने स्लीव पहनी हुई थी, मोटी मोटी, एंड फूली फूली कपड़ा था. एंड जो उसने स्कर्ट पहनी थी वो उसकी हाई टॉप तक आ रही थी, शूज़ के हाई टॉप तक आ रही थी. बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव. और उसके पीछे जहाँ पे ट्रैक के ऊपर उसने जब इंजन को देखा, सो वो जो इंजन था, वो जो लोकोमोटिव था, लोकोमोटिव मीन्स इंजन जो था, वेरी स्मॉल करियर एंड आइव्स लोकोमोटिव. ये उस ज़माने की कंपनी का नाम हुआ करता था, करियर एंड आइव्स. उस कंपनी का नाम लगा हुआ था उसमें, राइट. विद अ फनल शेप्ड स्टैक. और उसकी जो शेप थी वो फनल की तरह थी. एंड देन आई न्यू. Funnel shape means like in the old engine it was like that. So something like that he saw, right. So such kind of shape he saw. Then he understood what is going on.